The lesson, the road not taken. My dear students, this is from class 9th, the lesson. The well-known poem is about making choices and the choices that shape in the Robert Frost as an American poet. ये कविता एक अमेरिकन पोएट के द्वारा लिखी गई जिसमें दो रास्तों के बारे में बताया गया, कौन सा रास्ता हम अख्तियार करें और कौन सा रास्ता हम अख्तियार नहीं करें. Who writes simply but insightly about the common ordinary experiences. इसमें राइटर ने अपने एक्सपीरियंसेस को बताया, जिस एक्सपीरियंसेस में ये शो किया गया कि द टू रोड्स डाइवर्स इन द येलो वुड. दो रोड्स जो काफ़ी डाइवर्स हैं और जहाँ पर घनी और पीली वो जंगल का सीन है जहाँ. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ. And the writer is going by the way, but he says कि there is a divergent way that how far I can go to travel the road. फिर मैं उस travel को कैसे complete कर पाऊँ. I am unable to find out that whether this road is right or not. And be one traveler long, I stood and looked round, one as far as I could, to where it went in the undergrowth, and looked down one as far as I could. मैं खड़ा रहा, मैं देखता रहा, मैं सोचता रहा कि मैं किस रास्ते को पकड़ करके मैं जाऊं. To where it went in the undergrowth, then took the other. मैंने दूसरे रोड को लिया, पकड़ा. Just as fair, जो पूरी तरह से साफ सुथरा था. And having perhaps the better claim, और शायद मुझे अच्छा सा लगा मुझे ये बात, because it was a grassy and wanted wear, क्योंकि पूरी तरह से घास से वो ये आच्छादित था. And wanted wear, और मैं सोचता था कि ये आखिर कैसा है. थोड़ा सा घास तो जमा हुआ है, लेकिन इस पे लोग गए हैं कि नहीं गए हैं, या ये रोड चालू है कि नहीं है, मैं सोचता था. लेकिन वाकई वो रोड अनट्रॉडन ही था, ज़्यादा लोग उस रोड पे नहीं गए थे. दो दैट वॉज ग्रासी वेयर, बट मोस्टली वेरी फ्यू पीपल हैव गॉन बाय द रोड. दो एज फॉर दैट द passing there, they had worn from the really about the same. And in the course of time, I thought that which should be decided by myself, the road. So I decided the road which was not trodden positively, completely. मैंने उसी रोड को अख्तियार किया जो रास्ते पूरी तरह से trodden नहीं थे, जिस पे बहुत लोग गए नहीं थे. I liked the road and I followed the road, and both that morning equally lay in the leaves, no step had trodden black. कुछ दूर जब मैं गया तो मैंने देखा कि कभी तो इस पर कोई गया ही नहीं है, कितना जोखिम भरा वो रास्ता था. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we leased on to the way, I doubted if I should ever come back. मैंने सोचा कि मैं कैसे वापस आऊँगा फिर इस रास्ते से जा करके, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को नियंत्रित किया और मैं काफ़ी तेज़ी के साथ में चला गया. और जाने के बाद I just pointed there. I shall be telling this with the sides somewhere edges and edges hence. I shall be telling this. मैंने इस बात को ये किया with a sigh, थोड़ा सा शर्माते हुए, लजाते हुए. Somewhere edges and edges hence, two roads diverged in a wood. ये दोनों रोड्स जो थे वो डाइवर्स थे, जंगल की तरफ ही जा रहे थे. एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय. मैंने केवल एक ही को स्वीकार किया, एक ही रोड को मैंने पकड़ा जिस पर कम लोग गए थे. एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस. और इस तरह से मुझे एक बहुत बड़ा डिफरेंस नज़र आया उन दोनों रोड में. एंड आई लाइक्ड दिस रोड विच वाज not trodden completely, because in the life this very lesson tells the idea that all the things which we see in the life, so life is a terrible storm, and
life is just like a catastrophe. Life is not a bed of roses. It is full of thorns. जीवन तो एक संघर्ष है, और उस संघर्ष में जो भी आदमी संघर्षशील है वो कुछ पा लेता है, और जो आदमी संघर्षशील नहीं होता वो नहीं पा पाता है। तो इस तरह से ये लेसन एक डिडैक्टिक वैल्यू लिए हुए है। दिस पोएम हैज जस्ट टेकन ए डिडैक्टिक वैल्यू। डिडैक्टिक वैल्यू ये है कि विच रोड आई हैव टू कीप इन द माइंड एंड विच रोड, बाय विच रोड आई हैव टू go. So the word's meaning I have just divorced, separated and took a different directions. Though the disorder, undergrowth, dense growth of a plants and the bushes wanted wear had no been used. जिस रास्ते से कोई गुजरे नहीं हो, undergrowth, जो काफ़ी घना हो, hence wear in the futures. And about that we just see thinking about the poem. Where does the traveler find himself and what problem does he face? इसको मैंने बताया क्या ट्रैवलर को प्रॉब्लम फील हो रहा है, क्या ट्रैवलर अपने आप को महसूस कर रहा है, एंड डिस्कस व्हाट दिस फ्रेजेस मीन टू मीन। ए येलो वुड का क्या मतलब हुआ, इट वाज ग्रासी एंड दे वांटेड वियर का मतलब, जैसे येलो वुड का मतलब हुआ वो घना घना पीला बन, इट वाज ए ग्रासी एंड दे वांटेड वियर, जिस रास्ते से कुछ लोग गुजरे न थे, द पासिंग देयर, गुजरने वाले लोग हुआ, एंड द लीस्ट टू बी द स्टेप हैड द लेस ट्रॉडन ब्लैक, वैसे रास्ते जिस पर लोग कम चले थे, दैट वाज। इज देयर एनी द डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स, एंड द पोएट डिस्क्राइब्स देम इन द स्टैंजा 2 and 3 in the last two lines of the poem. What do you think that the last two lines of the poem mean? Looking back, does the poet regret the choice or accept? Looking back, whether he will come back or not and whether he will accept the road or not, ये मतलब हुआ कि वापस लौटने के बाद उसे वो रास्ता कैसा लगा या उस रोड को वो एक्सेप्ट करेगा नहीं। Have you ever had to make a difficult choice? For do you and think you will have to the difficult choices to make? How will you make the choice? For what reason? After you have made a choice, do you always think about what might have been or do you accept the reality? सच्चाई भी यही है कि जब तक हम जीवन में जोखिम भरा रास्ते को नहीं पकड़ेंगे और जब तक हम डिफिकल्ट चीज़ों को नहीं गले लगाएंगे तब तक हम खुशियाँ नहीं पा सकते हैं। दिस इज द रियलिटी, बिकॉज टाइम इज नॉट मेजर्ड बाय द पासिंग ऑफ द ईयर्स। समय को जो वक्त गुजर गया उससे हम नहीं ले सकते हैं, बट by what one does, what one feels and what one achieves। जो चीज़ हम प्राप्त कर लेते हैं, जो चीज़ हम ग्रहण कर लेते हैं कठिनाइयों में भी, वही हमारी अपनी होती है। By this way the lesson ends, my dear students, and you will keep care about that relation. This is from the Robert Frost, and the Frost is just telling its idea.